Hi, good morning, my dear students. Good morning, everyone. How are you? I hope you all are well at your home. Actually, I am preparing this video for class 10th students. As you are aware that I am committed to provide your content 100% satisfaction towards your the syllabus oriented content. Okay, so you all are welcome to my Gyan Guru channel of computer learning. My dear students, I have suggested you so many times. If my video, if my video is helpful to you, then subscribe it and just press the notification of bell icon so that whenever I am preparing my video, you will get its notification in your YouTube channel. Okay, and YouTube wherever you are viewing or watching this content. Okay, so I am going to tell you the way of database creation. Okay, I have already stated you in the previous class and I have already taught you one method, okay, of how to create database. मैंने आपको पिछले कक्षा में पिछले क्लास में टेबल बनाना सिखाया था. आई होप वो बातें पूरी तरह समझ में आई होंगी. अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी बातें समझ में नहीं आई तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. वंस मोर, ओके, आई विल clarify the content. Today I am going to teach you the same thing, okay, but in different way, different method, in different manner. Okay, got it? तो मैं आपको आज ही बताऊंगा, टेबल क्रिएशन ही बताऊंगा. यह बात भी सत्य है, परंतु एक मेथड से नहीं. एक किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. हम उसी मेथड में से आपका सबसे डिफरेंट और यूनिक जो आपके सिलेबस से संबंध तो रखता है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका अप लेवल का होता है, हाई लेवल का होता है, स्टैंडर्ड अप होता है. इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स इसको सीरियसली देखें, पूरी तरह वॉच करें. 100% आपको समझ में आएगा. ओके, आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग my class and all are understanding very well, as I have got feedback from the other students also too. Okay, दूसरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताया कि सर आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आप अपलोड करेंगे. एक्चुअली आई वाज समवट बिजी, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अपलोड माय वीडियो on time. Say sorry to all guys who are in the waiting queue. Okay, so now you don't have to wait too much. Okay, I am now available for you, my dears. You can enjoy the session with your extreme passion. Okay, so now come to the point, and the second method of table creation we are going to learn. Okay, now come to the next, content celebration. This is content celebration. Yes, good. We just celebrate the content, and definitely my students get benefited from this. Okay, so today I'm going to teach you the second method. And what is that method? The way of creation of your table. What is that? Okay, so for this purpose we will have to study another topic, and that topic is query. So we can create table using queries also.
So first of all, we must know what is query. Got it? Okay. Query. Can anyone confirm me? Can anyone confirm me, sir? What is query? Who can tell me? Query क्या होता है? कोई बताएंगे? So write about it. It is a language. It is a language using which we interact with the database. Simple. As I communicate to you, जैसे मैं आपसे बातचीत करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि मैं उसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जिस भाषा को आप लोग समझते हैं। अगर इस भाषा को आप नहीं समझेंगे और मैं जब कुछ भी बोलूंगा तो आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी ना? डेफिनेटली नहीं आएगी। उसी तरह से मैंने कहा क्या कि डाटाबेस से भी आप लोग क्या करते हैं? क्वेरी करते हैं। क्वेरी करते हैं मतलब क्वेश्चन आंसर करते हैं, राइट? मतलब व्हाट कि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, कब करते हैं क्वेश्चन आंसर? आपने कभी किया क्या? सब लोग करते हैं, परंतु आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि क्या मैं डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा हूं। ऐसा है क्या? नमन जी, कैन यू कंफर्म मी? नो सर, आप करते हैं, मैं बताता हूं कैसे करते हैं आप। सपोज व्हाट इज दिस, लुक एट हियर सर, कैन यू कंफर्म मी? दिस इज USSD कोड, ओके? USSD कोड, व्हाई डू वी यूज इट? इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग सर अपने मोबाइल फोन में जो भी हम प्रीपेड, अगर सिम कार्ड आपका एयरटेल का हो, BSNL का हो, तो उस वक्त हम लोग अपने अकाउंट बैलेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग USSD कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो है एयरटेल और BSNL के लिए *123#, राइट? Right now it has been changed. Now we can also do any sort of query using any operator. Suppose no problem, आप किसी भी ऑपरेटर को आप यूज कर रहे हो, ओके? you can dial just what *121#, नो प्रॉब्लम। इसमें इसकी कोई बाध्यता नहीं कि आप एयरटेल वाले हो, जियो वाले हो, आइडिया वाले हो, वोडाफोन वाले हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने सेलफोन से *121# डायल करें, फिर आपके पास देखें कि लिस्ट ऑफ क्वेरीज आ जाएगा। फिर आप उसमें से अपना माई स्पेशल ऑफर, माई ऑफर, माई बैलेंस, माई अकाउंट बैलेंस, माई न्यू ऑफर, ओके, इन सब सारी चीजों का लिस्ट वहां पे आता है। सपोज इफ यू वांट टू नो, अगर आप उसमें से चाहते हैं कि सर मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है, उसका सीरियल नंबर हो सकता है कि 1 हो, तो आप 1 को रिप्लाई पे क्लिक करें, रिप्लाई बटन पे, और फिर क्या करें आप वहां पे कर सकते हैं क्या कि सर आप अपने रिप्लाई बटन को वहां से यूज कर सर आप चाहें तो देखेंगे क्या, आप रिप्लाई बटन को क्या कर सकते हैं, वहां से रिप्लाई बटन को प्रेस करके और आप उसका रिस्पांस दे सकते हैं। और रिस्पांस देने के बाद फिर उधर से एक मैसेज आएगा आपके पास, आपका अकाउंट बैलेंस से संबंधित बातें हैं तो आपका अकाउंट बैलेंस बताएगा, ठीक है? अगर आपका अकाउंट बैलेंस से संबंधित बातें नहीं है तो स्पेशल ऑफर से संबंधित बातें हैं तो वो बताएगा आपको, ठीक है? तो इन सब सारी चीजों का एनालिसिस आप कर सकते हैं वहां पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। क्लियर है? तो ये क्या है, एट दैट टाइम एक्चुअली यू वी आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस, ओके? continuously database sends you what the responses according to your ऑप्शन नंबर चूज इन देयर। आप जो भी ऑप्शन चूज करते हैं वहां से आप देखेंगे क्या कि आपको उसके अकॉर्डिंगली
क्या मिलेगा आपको? उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो व्हाट इज दैट? तो वो भी तो एक क्वेरी है ना। क्वेरी सिंपल मीन्स क्वेश्चन आंसर। क्लियर? क्वेरी सिंपल मीन्स व्हाट? क्वेश्चन आंसर। क्वेरी का मतलब ही होता है क्या? क्वेश्चन आंसर सर। ठीक है, तो मैं आपसे करूं या आप डाटाबेस से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में क्या होना है? क्वेश्चन आंसर ही हम लोगों को करना है। ठीक है, तो क्वेरी समझ में आ गया सबको? मैं समझता हूँ 100% समझ में आ गया, 100% पक्का। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि सर ये क्वेरी जो है हमारा डाटाबेस जो है हम वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज? देयर आर 4 kinds of queries. Got it? There are 4 kinds of queries. Query number 1, what is that? DDL. Have you heard the name? DDL, which means data definition language. Okay. Second one is that, दूसरा क्या है? DML. DML means what? Data manipulation language. Okay. Third one is what? Can anyone confirm? Naman, Jaya, anyone? No one? DCL. Okay. Data control language. Okay. Third one is what? Fourth one is what? TCL. TCL. Transaction control language. Got it? I hope it's quite clear to everyone. सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल डिस्कस्ड वन थिंग। एंड व्हाट इज दैट थिंग? द थिंग इज, मैंने कहा कि क्वेरी की हम लोग को पढ़ना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू द क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्लास 12th स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, आप इसे पढ़कर परीक्षा में 100% डाटाबेस का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कंडीशन एक ही है, याद रखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, डेफिनेटली ऐसा तो कर ही सकते हैं हम लोग ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें। तो इसमें मैंने बताया कि आपको कि सर डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये क्या है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे चले। डीडीएल, व्हाट डज डीडीएल से? डीडीएल क्या कहता है? कोई मुझे बता सकते हैं? ओके, एनीवन? नो वन? जानवी, आर यू रेडी? यस, डीडीएल, it is confined to, it is confined to creation, modification and deletion of database. Okay, databases you can say, no problem man। मैंने क्या कहा कि हम लोग ये डीडीएल कमांड्स क्या होते हैं? डीडीएल, data definition language, it is confined to creation, modification and deletion of, it works, it has 3 aspects, 3 areas that using which we can create table, modify it, and we can also delete the database. Got it? So what are DDL commands? So DDL commands, just memorize. Okay, we have only three, Brahma, Vishnu, Mahesh. Oh my God, not understood. नहीं समझ में आया ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है
कि DDL कमांड्स में पहला होता है क्रिएट। क्रिएशन किसका काम है? सृजन भगवान विष्णु का काम है ना। और तकदीर लिखने का काम कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। और संहार करने का काम कौन करते हैं? जो कहते हैं डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, तो लॉर्ड शिवा करते हैं। मतलब कि हम लोगों को बस यही याद रखना है, DDL मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश। क्लियर है? आई एम नॉट टीचिंग यू द मोरल स्पिरिचुअल थिंग्स हेयर। मैं आपको कोई आध्यात्मिक बातें नहीं बता रहा, तो याद करने का शॉर्टकट तरीका है, ये मेथड है जिसके द्वारा से आप भूल ही नहीं पाएंगे, जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे आप इसे, आई गारंटी। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने क्या बताया आपको? हमने कहा कि सर ब्रह्मा विष्णु महेश याद रखिए। तो पहला कहता है कि सर, तो पहला DDL कमांड्स में पहला क्या है? ए नंबर है आपका क्रिएट। ओके, तो फंक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, क्रिएट। नेक्स्ट अल्टर। अल्टर मीन्स चेंज, मीन्स मॉडिफिकेशन। ओके, एंड थर्ड वन इज सर delete. Okay, only three things. Delete. So these are three DDL commands. These are three. Look at I am sliding it upward. Got it? तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास सर ये तीन कमांड होते हैं, क्रिएट, अल्टर और डिलीट। मैं समझता हूं हम लोगों में से सभी लोगों ने इसे बखूबी देखा है, इस वर्ड से परिचित हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि सर क्रिएट का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब मॉडिफाई चेंज होता है और डिलीट का मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है। ओके, चलिए, तो हम टेबल कैसे बनाएं? मैं आपको आज यही चीज बताने वाला हूं कि सर SQL कमांड का यूज करके, क्वेरीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना भी सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, syntax for database creation. Now right here, syntax to create. Now firstly I want to teach you create, the function of create. Simple, it create databases. Yes, it creates database. Got it? Now write its syntax again. Syntax, first of all we have to write what? Create table, table name. This name can be anything, no man, no problem. Create table, table name. Okay, next what we have to supply here? We have to supply list of attributes, list of attributes with data type. Got it? List of attributes with data type. This is the syntax. Got it? I hope everyone can understand it easily. No? Okay, तो मैंने क्या कहा कि सर क्रिएट कमांड क्या करता है हमारा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये डाटाबेस बनाने का काम करता है। सीधी सी बात, हम लोग छोटे छोटे शब्दों में समझे, क्रिएट का फंक्शन क्या है? डाटाबेस क्रिएट करना। क्लियर? एनी डाउट? नो। सिंटेक्स हमने देख लिया, एक एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? वेरी इंटरेस्टिंग इट विल बी। ओके, एग्जांपल, सपोज create table, you all are students. Okay, so create table student, so table name is what? Student here. Understood? Create is what? Create is what? Create is, what is that? Create is a command, it's your table, we are going to create table. And student is what? Student is a name of table. Got it? So name of table, list of attributes, what will be there? Roll
Okay, which type of data it is? Number. Got it? And suppose if I want to, in the previous class, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ध्यान से देखें। वहां पे हम लोग प्राइमरी की सेट करते थे, वहां पे एक बटन बना होता था, क्लियर है? तो प्राइमरी की सेट करने का हम लोग काम करते थे। तो वहां भी हम लोग को क्या करना था? कुछ नहीं करना होता था, बस जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है हम लोग उस फील्ड को क्या करते थे, उस फील्ड को हम लोग उस पे प्राइमरी की बटन पे जस्ट क्लिक कर देते थे, है ना? या राइट क्लिक करके प्राइमरी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ एसक्यूएल कमांड्स के रूप में है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ता है। ओके, प्राइमरी की आई मीन रोल नंबर क्या हो गया आपका? प्राइमरी की। वन थिंग यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई हियर इज दैट, आप एक चीज और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। वह क्या है आपका, कि अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर से हमारा दो डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप 2 डिजिट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद क्या है, प्राइमरी की हो गया 2 डिजिट का ही लेगा, उससे ज्यादा का नहीं। 100 तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा। 1 से करेगा, 1 डिजिट करेगा, 2 डिजिट करेगा, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 99, सो 99 आएगा आपका। अगर आप चाहते हैं सर 3 डिजिट का होना चाहिए तो 3 डिजिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एस नेम, स्टूडेंट नेम कैसा होगा आपका सर? स्टूडेंट नेम आपका टेक्स्ट टाइप होगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में सिलेक्शन भी किया था। अगर आप चाहते हैं कि सर स्टूडेंट नाम 25 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, 25 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको मैं ऑनलाइन करके भी प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा भी, आप सभी आदमी को समझ में आ भी जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका स्टेप्स कैसे होगा, कैसे कैसे लिखना है, लिखना यही है जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। ओके, एंड सपोज एड्रेस, एड्रेस गॉट इट। एड्रेस का डेटा टाइप क्या होगा? मेमो। ओके, एंड इसका फील्ड साइज अगर सपोज आपने 500 कर दिया तो 500 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से क्या करना है हमें, फिर एक पैरेंथेसिस देना है और इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, वहां पे रन करना है, रन द एसक्यूएल क्वेरी। ओके, एसक्यूएल कमांड, ये जो आपने लिखा है इसे क्या करना है, आपको रन करना है। रन करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या होता है? आर यू श्योर? ओके, नहीं, जस्ट आप इस पर जैसे रन पे क्लिक करेंगे, अगर सिंटैक्टिकली क्वेरी आपका सही लिखा हुआ है तो आप देखेंगे लेफ्ट पैनल में एक टेबल जो आपने स्टूडेंट नाम दिया था, राइट, उस स्टूडेंट नाम का क्या होगा, एक स्टूडेंट नाम का वहां पर देखेंगे कि यार टेबल बन जाएगा। गॉट इट? अगर नहीं, सिंटैक्स को एरर हो गया तो नहीं बन पाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, मैं समझता हूँ सबको समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन आप वहां पे करेंगे कैसे? इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन एमएस एक्सेस में खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सारे टीचर्स तो जनरली बताते नहीं, वो मेनू बेस्ड वाला ऑप्शन बता देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, इसी मेनू बेस्ड से हम लोगों को काम करना है। लेकिन नहीं, एक एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम लोग आईटी सेक्टर के आदमी हैं, हम लोग को हर तरीका मालूम होना चाहिए काम करने के लिए। ओके, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एमएस एक्सेस जब ओपन करेंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको एमएस एक्सेस ओपन करने आता होगा। वेब डाटाबेस ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। ओके, स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। ओके, एसक्यूएल कमांड का यूज करके कैसे आप क्वेरी, कैसे आप वहां पर टेबल बनाएंगे, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। ओके, वेरी सिंपल थिंग एंड वन कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, फर्स्ट स्टेप्स स्टेप फर्स्ट, so come here, step first, open MS Access, database, got it. Second, click on create menu. Okay, click on
create menu. Third point is what? Click on query design. Okay, you will have two options there, add or close. आपको वहां पे क्या करना है, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन. देन आफ्टर यू विल सी दैट इन लेफ्ट साइड, सबसे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे क्या कि आपके वहां पे SQL कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा. क्या मिलेगा? SQL. गॉट इट? सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? क्लिक ऑन SQL view. Click on SQL displayed in the top left corner of your window. आपके विंडो पे देखेंगे क्या कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे SQL दिखेगा, आपको वहां पे क्लिक करना है. क्लियर है? जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वहां पे एक इस तरह का जो अपीयरेंस होगा आपके सामने आ जाएगा, इस तरह का, और इसमें लिखा रहेगा क्या, सेलेक्ट लिखा जनरली आ जाता है. गॉट इट? क्या लिखा आ जाता है हमारा? सेलेक्ट लिखा हुआ आ जाता है जनरली. गॉट इट? हमें इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है. यहाँ से डिलीट करने के बाद हम लोग को अपना कमांड लिखना है. क्या सा कमांड बताया था मैंने? क्रिएट टेबल स्टूडेंट. ओके, इसमें मैंने क्या बताया था? रोल, विच टाइप ऑफ डेटा इट इज, नंबर. ओके, हाउ मेनी साइज ऑफ द field is there, roll number, primary key. Okay, next student name, which type of data, text, what is its size, 25. Okay, next address, what is its size, 500. No problem, semicolon. So you have to type this too much text there. Okay, got it? तो आप वहां पे देख लेंगे क्या कि आप इस तरह का आपको देखने को मिलेगा. फिर आप वहां पे क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, इस क्वेरी को रन कराएंगे. रन कराने के बाद देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपका टेबल बन गया. करेक्ट? थैंक यू. तो आज मैंने जब आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह आपको समझ में आया होगा. आपको इसको अगले दिन में, अगले सेशन में मैं लैब पे इसको कर कर दिखाऊंगा. यहाँ से आपको घर बैठे भी देख सकते हो, और एक बार आपने देख लिया तो हमेशा आपको याद हो जाएगा. डेफिनेटली, आई एश्योर यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.